Well, welcome once again to our online Sunday service. और बार हमारे ऑनलाइन रविवार की सर्विस में सेवकाई में आपका स्वागत है। And we are starting a new series titled Called or Chosen. आज हम एक नया सीरीज चालू करने वाले हैं, बुलाए गए या फिर चुने गए। In our last series, we talked about how we need to use God's gifts given to us. गए सीरीज में हमने सुना कि परमेश्वर ने हमें दिए हुए दानों को, वरदानों को उसका कैसा उपयोग में लाना है। And we talked about the gift of salvation. रक्षा के वरदान के बारे में हमने सुना। We spoke about the gift of righteousness. धार्मिकता के वरदान के बारे में हमने सुना। And we also spoke about the gift of multiplication that God has given in us. और बढ़ोतरी के वरदान के बारे में हमारे अंदर परमेश्वर ने सौंपा है, उसके बारे में हमने सुना। And now we are continuing in the same idea of a gift that is the gift of being called. और हम उसमें ही आगे बढ़ते हुए एक वरदान है जैसे बुलाए गए हैं। In other words, we are called by God directly. He calls us by name. परमेश्वर ने हमें बुलाया है या फिर हमें नाम देकर हमें चुना है या फिर चुनकर बुलाया है। There are those that are called and there are those that are chosen. कुछ ऐसे हैं जो बुलाए गए हैं और कुछ ऐसे हैं जो चुने गए हैं। Do you know which one you are? क्या आपको पता है कौन से हैं आप उसमें से? Now, according to what I understand, according to what the Bible teaches me, I do understand and I believe that every single one of us has been called. और वचन के आधार पर और वचन के समझने पर हम में से हर एक को बुलाया गया है परमेश्वर ने। This is what I truly believe, that if you're listening to my voice this morning, if you're listening to my voice, you have been called by Jesus Christ. यदि आप मेरा आवाज सुन रहे हो आज इस सुबह के समय पर, तो हम में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर ने हमें बुलाकर अलग किया है। Now it is your choice if you're going to answer that voice or not. भी हमारे पास है कि हम उसे सुनना है या फिर हमें उसे ना सुनकर चले जाना है। I don't think there is one of you that can clearly or honestly say that Christ has not called you. हम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ऐसा कहेगा कि परमेश्वर ने मुझे नहीं बुलाया है, यीशु मसीह ने। Because if you have heard of the name of Jesus, if you have known anyone who is a true disciple of Jesus Christ, you have been called. यदि आपने इसने वचन सुना है या फिर परमेश्वर यीशु मसीह को जाना है, तो आप बुलाए गए हो, आपको बुलावट है। You see, the day you meet Jesus Christ, the day you die, you will meet Jesus Christ. And that day, there will be no excuse to say, well, nobody told me about this. आप जिस दिन आपकी मृत्यु होगी या फिर आप यीशु से मिलोगे या फिर आप उस पार जाओगे, तब आप नहीं बोल सकते कि मुझे किसी ने बुलाया नहीं या फिर मुझे पता नहीं था। In this day and age, with the technology in our hands, every single one of us can know who Christ is and that He is calling us. आज के दिन और युग और आधुनिकता में हमारे हाथ पर, हमारे उंगली के छोर पर है सभी व्यवस्था है, तो आप नहीं बोल सकते कि मैंने कभी यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना है। So in this series, which we're starting today, we're going to talk not only to those who do not follow Jesus Christ, but also talk to those who have chosen to follow Jesus. हम इस सीरीज में सिर्फ वो ही नहीं जो बुलाए गए हैं, लेकिन हम उनके बारे में भी सुनेंगे या फिर मनन करेंगे जो चुने गए हुए लोग हैं। So we are talking to unbelievers and also to those who call themselves believers. हम उनके बारे में भी जो अपने आप को विश्वासी ठहराते हैं और जो विश्वासी नहीं ठहराते अपने आप को, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। And you will hear some truths that you will not like. और आप कुछ सच्चाई सुनोगे जो आपको पसंद नहीं आएगा। Because the word of God is truth and it penetrates deep within us and it makes all things clear.
आमीन। परमेश्वर की आत्मा और वचन सच्चाई है और आपके अंदर वो घुसकर वो उस सच्चाई को साफ करती है और आपके हृदय में जो भी मेल है उसे दूर करती है। Those of you that have chosen not to follow Jesus, you will see what your end will be according to the Bible. आप में से चुने गए जो है और वो ऐसा सोचते हैं कि मैं परमेश्वर यीशु मसीह का पीछा नहीं करूंगा, तो उनका क्या दशा होने वाला है अंत में आप देखोगे इस सीरीज के द्वारा। And those of you that have chosen Jesus Christ, you will also see that God is very strict in this calling. आमीन। जिन्होंने भी यीशु को चुना है या फिर अपनी चुनावट को समझकर आपने गया है, तो आपको समझ में आएगा कि वचन के आधार पर इसके अंदर इस भाग में कैसा कहा गया है, उस चुनावट के हिसाब से कैसे जीना है। So we're going to go deep into this topic and you will know who you are. हम इस वचन के गहराई पर जाने वाले और इसमें से हमें पता चलेगा कि हम बुलाए गए हैं या चुने गए हैं। And if you don't get anything else from these teachings, all I want is for you to realize that you're still very far from where you need to be. इस वचन से यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता हो तो भी मैं ये चाहता हूँ कि आप वचन पर और यीशु मसीह के पास से आप कितने दूर हो, ये आप समझ लीजिए। So we're going to start with the parable in the book of Matthew. हम एक दृष्टांत से लेकर मत्ती रचित सुसमाचार से हम पढ़ेंगे। In Matthew chapter 22, in the beginning, we have the story that Jesus tells us about what heaven is going to be like. मत्ती रचित सुसमाचार 22 के अध्याय की शुरुआत में हम पढ़ते हैं कि दृष्टांत ऐसा बताता है कि स्वर्ग कैसा होने वाला है। Jesus Christ is teaching us about who God is and what is going to happen when Jesus Christ returns. इस भाग में यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्ग कैसा होने वाला है और कैसा यीशु है और कैसे यीशु के आगमन पर क्या-क्या घटने वाली है या फिर होने वाली है। Here Christ teaches us about how God has a plan to save those that love him. और यहाँ यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, उन्हें बचाना जो परमेश्वर यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। And at the end of this parable, he finishes by saying, many are called, but few are chosen. और इस दृष्टांत के अंत में हम ऐसा पढ़ते हैं क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। So not everyone who thinks that they are going to make it to heaven will actually make it. कई लोग जो जिन्हें लगता है कि वो स्वर्ग में पहुंचने वाले हैं, वो वहां नहीं पहुंचने वाले। अंत में इस सीरीज के भाग में हमें पता चलेगा। So we're going to go deep into this step by step, and we'll continue with this series because, like I said, this is going to be teaching for those who do not believe in Jesus and also for those who believe in Jesus. जैसे मैंने शुरुआत में कहा, हम एक भाग पर जाएंगे, गहराई में जाएंगे वचन पर, और ये उनके लिए है जो परमेश्वर यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं और उनके लिए भी जो परमेश्वर यीशु मसीह में विश्वास नहीं रखते। Those that do not believe in Jesus, I trust and I pray that you will run to Christ. जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं रखते हैं, मैं आशा और विश्वास रखता हूँ ये वचन सुनते ही आप परमेश्वर की ओर दौड़े हुए आओगे। And those who have accepted Jesus Christ, my desire is that you would become serious with your walk and go deeper into what God is wanting you to do. जो यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, मेरी आशा और इच्छा यही है कि आप परमेश्वर के साथ एक गहरे संबंध में और गहराई की आत्मिकता की गहराई में आप आओगे। So let's go directly to the Word of God. वचन में हम जाएंगे। So Matthew chapter 22. मत्ती रचित सुसमाचार 22वां अध्याय। We start from the beginning. शुरुआत से हम पढ़ेंगे पहला वाक्य। Okay. So it says, again Jesus spoke to them in parables. He said, the kingdom from heaven may be compared to a king who gave a wedding banquet for his son. यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया।
So here we are seeing that the king is talking about, God the creator, and the son obviously is Jesus Christ, and the wedding feast is the end of the world when Jesus comes back. इधर इस दृष्टांत में हम ऐसा पढ़ते हैं कि स्वर्गीय राज्य राजा प्रभु परमेश्वर जो अपने पुत्र यीशु मसीह और जो भी बुलाए गए लोग हैं उस इस दुनिया के अंत में होने वाली बातें घटनाएं घटी गई है। So at the end of the world, when Jesus Christ returns, those that are in Jesus Christ will enjoy this wedding feast. परमेश्वर यीशु मसीह में जो है और इस शादी के माहौल में या विवाह के जो भी निमंत्रण में उनका आनंद लेंगे। Then verse 3 we say, and he sent his servants to call those who had been invited to the wedding, but they refused to come. और तीसरा वाक्य ऐसा कहता है, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह को के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। So God gives you a choice and gives me a choice if we want to be part of that wedding feast. और परमेश्वर आपको और मुझे ऐसे एक चुनाव देता है कि आप उसमें विवाह में भागी होना चाहते हो या कि नहीं। See, Jesus Christ will never force himself upon you. यीशु मसीह कभी भी हमें जबरदस्ती या फिर हमारे ऊपर लागू नहीं करेंगे कि आप ये कीजिए। Now, because he loves you, he might make things a little bit difficult in your life so that you will turn to him. कई बार ताकि आप यीशु मसीह की ओर आए, हमारे जीवन में कई ऐसी समस्याएं आएंगी जो हमें कठिनाई लगेगी ताकि हम परमेश्वर की ओर खींचे आए। But this is only done by Jesus Christ because he loves you. ये यीशु मसीह इसीलिए ही करते हैं क्योंकि वो आपसे प्रेम रखते हैं। See, when do you turn to God? परमेश्वर की ओर कभी मुड़कर आओगे? Is it when you're completely healthy? जबकि आप सब पूरी तरीके से तंदुरुस्त हो? Is it when your whole family is completely healthy? जब आपकी पूरी परिवार एकदम खुशल है या फिर तंदुरुस्त है? Is it when you have a big bank balance? या फिर आपके बैंक में बहुत अच्छा खाते में अच्छा पैसा है? Or is it when you think you are an amazing person, you feel good about yourself? या फिर आपको ऐसा लगता हो कि मैं इतना अच्छा व्यक्ति हूँ कि मैं बहुत अच्छा कार्य करता हूँ, इसके लिए मुझे अपने आप में कुछ अच्छा लगता है। Is that when you turn to God? या तब आप यीशु मसीह की ओर मुड़कर आओगे? No, right? नहीं। You turn to God when you are going through trouble. आप यीशु मसीह की ओर तब आते हो जब आप समस्याओं से गुजरते हो। When you are sick or your family members are sick. या फिर आप बीमार हो या फिर आपके परिवार का कोई बीमार हो। When you have some kind of financial trouble. या फिर आप में कुछ सांपत्तिक क्लेश है या फिर भार है आपके ऊपर। When you have some kind of physical defect or emotional pain. आप शारीरिक या फिर मानसिक कमियां आपके अंदर हो तभी। When you feel depressed and you feel like things are not working out in your life. जब आप निराश और हताश होकर सोचोगे कि मेरे जीवन में कुछ भली तरीके से घट नहीं रहा है। If you are going through these things, consider yourself blessed. आप ऐसे समस्याओं से जा रहे हो तो अपने आप को धन्य समझिए। Because this is the time that you are going to turn to God. क्योंकि यही समय है आप परमेश्वर की ओर मुड़कर आओगे। हालेलुया। You look at other people around you and they have the perfect job and the perfect family. अब आपकी और आस पड़ोस में देखोगे तो अच्छा परिवार है, अच्छा कामकाज है। You desire what they have because in the outside everything looks perfect. आप उनको देखोगे तो उनके पास वो सब कुछ है जो आप इच्छा रखते हो आपके जीवन में हो, उनका जीवन अच्छा चल रहा है बाहर से देखोगे तो। Most probably they are not seeking God. सच्चाई से कहूँ या फिर सच्ची रीति में वो परमेश्वर की खोजी नहीं है या फिर परमेश्वर को नहीं खोज रहे हैं। You see, it is through these troubles and through these things that we have to face that God becomes real in our life. ऐसी समस्याओं से या फिर घटनाओं से जाते ही समय यीशु मसीह हमारे जीवन में खरा ठहर कर वो हमारे जीवन में आएंगे। That's what Apostle Paul says, rejoice when you go through troubles. के लिए प्रेरित पौलुस कहता है कि जब आप समस्याओं से कठिनाई से जाओ तो आनंदित रहो।
And I'm telling you the same thing. When you go through troubles, rejoice because you are now putting your faith in Jesus Christ. मैं भी यही कहना चाहता हूँ, जब समस्याओं से, कठिनाइयों से, परेशानियों से जा रहे हो तो यीशु मसीह में आनंदित हो जाओ। So in this wedding feast, God is calling the people He knows to come and enjoy what God has prepared for them. इस विवाह के निमंत्रण में परमेश्वर यीशु मसीह उनको चाहता है कि ताकि उस भोज में आए या फिर उस विवाह में आकर भागी हो जाए। He wants you and I to come and enjoy the wedding feast. वो चाहते हैं कि उस भोज में आप और मैं आकर आनंदित ले और मग्न हो जाए उसमें। He knows we are going through troubles and He allows the troubles so that we will come and just take some time and be in His presence. वो चाहते हैं कि हम उसमें भागी हो जाएं और समस्याओं से दूर हो जाकर उनकी उपस्थिति में बैठकर उनका आनंद ले। Now, this wedding feast does not only represent the end times when Christ returns, it also represents what we are doing right now. ये विवाह का भोज ना कि परमेश्वर के पुनर्आगमन को दर्शाता है, लाके ये भी दर्शाता है कि हमारे अभी बीतने वाली हमारी जीवन या फिर कैसी चल रही है। What we are doing right now, you and I, in this meeting online, this is a wedding feast. ये आप और मैं इस मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग में जो कर रहे हैं, यही परमेश्वर का विवाह का भोज है। The Holy Spirit has invited you. He is the messenger. He has invited you and you have come to the wedding feast. पर पवित्र आत्मा ने आपको निमंत्रण दिया है, वही संदेश वाहक है जिसने आपको निमंत्रण देकर इस मीटिंग में आकर आपको लेकर आया है। God is going to heal you in this meeting. परमेश्वर आपको चंगाई करने वाला है इस मीटिंग में। He's going to feed you in this meeting. आपको भोजित करने वाला है इस मीटिंग में। He's going to make you enjoy the time so that you feel His presence in this meeting. This is the wedding feast. ये विवाह का उस बोझ है जहां आपको बुलाकर आपकी कुशलता कर आपको आशीष कर परमेश्वर आपको भेजेगा। For a few minutes right now, you will forget all your problems. इसके लिए कुछ समय के लिए आपकी सब समस्याओं को आप भूल जाइए। Because you will be in His presence and He will be there with you and you will realize that life is much more than what you thought it was. क्योंकि इस समय, इस क्षण आप उसकी उपस्थिति में बैठकर आप सब कुछ भूल कर तब आप जान पाओगे कि उसकी उपस्थिति में बैठने का आनंद और उसका आशीष क्या होता है। And this wedding feast is just a small sample of what is coming for you if you're a follower of Jesus Christ. और इस विवाह का भोज सिर्फ एक छोटा सा बेट है, वो दर्शाने के लिए कि आप यदि इसमें विश्वास कर आगे जाओगे तो आगे और कितनी आशीषें आपके लिए ठहरी गई है। Let me ask you a direct question. मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ। If you can't enjoy the time right now in this service or going to church on a regular basis and being with other believers, why do you want to go to heaven? मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि इस समय, इस मीटिंग में आप यदि परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद नहीं ले पाते या फिर रविवार की आराधना में आप जाते हो, अपने सह विश्वासियों के साथ यदि आप अच्छा समय नहीं बिता सकते, तो आपको स्वर्ग में क्यों जाना है? See, in heaven, all we're going to do is be in God's presence. क्योंकि स्वर्ग में हम एक ही चीज करने वाले हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में हम ठहरने वाले हैं या फिर हमेशा समय बिताने वाले हैं। In that wedding feast, there will be lots of food, a lot of dancing. उस विवाह के भोज में बहुत सा आनंद, बहुत सा खाना और बहुत सा मग्न और नाचना है। There will be rejoicing because we will be in front of our Creator. क्योंकि हम आनंदित रहेंगे क्योंकि हम हमारे सृजनहार के सामने उसकी उपस्थिति में रहने वाले हैं। We will be praising Him and worshiping Him. हम उसका आनंद लेकर उनकी स्तुति और उनकी प्रशंसा करने वाले हैं। If you can't do that right now, why do you want to do that for the rest of eternity? यदि आपको इस समय, इस क्षण आराधना में नहीं कर सकते, तो आप अनंत काल के जीवन में जाकर वो कैसे करने वाले हो सदा सर्वदा? You see, every time you miss a meeting, you are like these people who did not want to go to the wedding feast. हर एक मीटिंग जब आप मिस करते हो या फिर नहीं आ पाते हो, अब इन लोगों के समान है आगे जैसे हम पढ़ते हैं जिन्होंने उस बोझ को, विवाह को में नहीं आना चाहा और उनका क्या दश हुआ। Verse 4, let's continue.
So he sent other servants, saying, Tell those who have been invited, Look, I have prepared my dinner. My oxen and fattened calves have been slaughtered. Everything is ready. Come to the wedding. 22 का चौथा वाक्य, फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और फले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। And then verse 5, But they paid no attention to this and went away, one to his farm, another to his business. और 5वां वाक्य, परंतु वे अपेक्षा कर कर चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। So they refused the invitation because they were busy. उन्होंने आमंत्रण को तिरस्कार किया क्योंकि वो व्यस्त थे। Now, if you're not a believer in Jesus Christ, what are you so busy with that you don't want to come to Jesus? यदि आप यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते तो आपकी जीवन किस चीजों में व्यस्त है कि आपको यीशु मसीह के संगति में नहीं आना है? When all you heard about Jesus is good things and that he's going to change your life, what is stopping you from surrendering to him? आपने यीशु मसीह के बारे में, उनके बड़े रीति के बारे में, वो कितने अच्छे हैं उसके बारे में सुनकर भी अपने आप को समर्पण नहीं कर पाए, तो क्या चीज है जो आपको रुका रही है या फिर रुकावट है आपके जीवन में? You are busy with your own mindset. आप अपने मानसिक सोच में व्यस्त हो, You are busy with your own cultural traditions. या फिर आपके खुद के रीति रिवाजों में आप व्यस्त हो, And you are busy with the fear of what people will say if you turn to Jesus Christ. या फिर उस डर में आप व्यस्त हो कि आप सोचोगे कि क्या लोग कहेंगे जब मैं यीशु मसीह का चेला या फिर उनके अनुयायी बनने वाला। See, imagine you've been invited to someone's wedding. अब सोचिए कि आपको किसी के विवाह में निमंत्रण किया गया है And you are embarrassed to go to that wedding. और आपको शर्मिंदगी हो रही है उस शादी में जाने के लिए। I mean, is God that horrible? Is Jesus Christ that bad for you that you are embarrassed if people see you going to that wedding? या क्या यीशु मसीह इतने खराब व्यक्ति है या फिर इतने भयंकर व्यक्ति है कि उस विवाह के बोझ में जाने से लिए आप डर रहे हो या फिर तिरस्कार कर रहे हो? Now here it talks about people that were actually believers, that were actually known by the king, and they were too busy to come. इधर ऐसा पढ़ते हैं कि जो राजा को जानते थे या फिर ना विश्वासी ना थे, वो आने के लिए अपने आप में व्यस्त थे अपने काम में। So what are you so busy with during the whole week that you cannot gather with the brothers and sisters to enjoy this feast? आप अपने एक सप्ताह में इतने क्या व्यस्त हो कि अपने भाइयों बहनों से या फिर परमेश्वर की उपस्थिति में आने से आपको रुकावट बन रही है या फिर व्यस्तता है? In this parable, some were busy with the farm, some were busy with business. कुछ इस दृष्टांत में कुछ अपने खेतों के कार्य में व्यस्त थे, कुछ अपने कारोबार या फिर व्यापार में व्यस्त थे। You see, even God, who is the creator of all time, even he took one day out just to rest. सृजनहार जो इस सृष्टि के सृजनहार हैं, उन्होंने इतना कुछ सृजाया, इतना कुछ किया, इतना उत्पन्न किया, उन्होंने भी एक दिन आराम करने के लिए चुना। Now he didn't need to do that, but he did that to set an example for us. उनको करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो दृष्टांत के तौर पर उन्होंने वो किया। He set an example for us that we need to set apart the time to enjoy the wedding feast. उन्होंने एक दृष्टांत हमारे लिए अलग करके रखा है कि उस विवाह के बोझ को हमें उसका आनंद लेना है और उसके लिए अपने आप को समय को अलग कर रखना है। So every single one of us is being called to attend the wedding feast. हम में से हर एक व्यक्ति बुलाए गए हैं इस विवाह के भोज में। If you're not a believer in Jesus Christ, you are being called right now to attend for the first time in this sample of the wedding feast. यदि आप विश्वास में नहीं हो, यीशु मसीह को नहीं जानते हो, तो आप बुलाए गए हो इस विवाह के बोझ में, उसमें भागी होने के लिए, कि जानने के लिए कि ये है क्या। And if you are a believer, you are being called to
continually enjoy this wedding feast and be a part of it. और आप एक विश्वासी हो तो परमेश्वर चाहता है निरंतर लगातार आप इस भोज में विवाह में अपने आप को शामिल कीजिए और उसके प्रेम और आनंद अनुग्रह का आनंद लीजिए। So church is actually a sample of a wedding feast. और एक कलीसिया एक विवाह के भोज का एक छोटा सा भाग है या फिर दृष्टांत है। Are you going to be like the ones who reject that invitation, or you will be the one who accepts it? आप में से वो व्यक्ति है जो उस निमंत्रण का तिरस्कार करने वाले हैं या फिर उसका स्वीकार करके उसमें जाने सहभागी होने वाले हैं। You see, the title is called, many are called, but few are chosen. हमारा आज का शीर्ष यह है, कहीं बुलाए गए हैं और कहीं चुने गए हैं। In this parable, at the end, it says many are invited, but few come. और इसमें हमारा इस टाइटल ऐसा है, बहुत ही बुलाए गए हैं और कुछ ही चुने गए हैं। So you are all invited, but you have to decide if you want to be a chosen one. आप सभी बुलाए गए हैं, लेकिन आपके पास है उसका आपका उसमें भागी होना है या ना भागी होना है। Let's continue with the next verse. आगे के वाक्य को हम पढ़ेंगे। Verse 5. But they paid no attention to this and went away. Oh, we read that one. 5, no, 6, sorry. The rest grabbed the king's servants, treated them brutally, and then killed them. अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और उन्हें मार डाला। 6वां वाक्य। So some of the ones that were invited, they went back to their business and their farm, but others, they actually directly killed the messengers. और कुछ खेतों में गए, कुछ व्यापारों का कार्य करने लगे, लेकिन कुछों ने उस भेजे हुए संदेशवाहक को पकड़कर उसकी हत्या कर दी और उसे नाश कर दिया। So how did the king react? In verse 7, then the king became outraged. He sent his troops and destroyed those murderers and burnt their city. और 7वां वाक्य, तब राजा को क्रोध आया और उसने अपने सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर में फूंक दिए। Now, this is giving us, how could you say, a prophetic message of what was going to happen in the future. और एक ये भविष्यवाणी है इस संदेश में, इस वाक्य में, कि आगे के भविष्य में आगे क्या होने वाला है। Now, the messenger that was sent was Jesus Christ. और संदेशवाहक जो भेजा गया वो यीशु मसीह थे। And some people were busy with their own idea, with their own religion, and did not want to come to the wedding feast. कुछ लोग अपने ही मानसिक सोच में, उनके रीति रिवाज में, संप्रदाय में व्यस्त थे और उनको उस विवाह के भोज में आमंत्रण में नहीं आना था। Jesus Christ was sent first to the Jews. यीशु मसीह पहले यहूदियों के बीच, And what did they do? और यहूदियों के बीच में भेजा गया तो उन्होंने क्या किया? They killed him. They crucified Jesus. उन्हें यीशु को मार दिया या फिर क्रूस पर लाद दिया। And what did God do in return? और यीशु मसीह ने क्या किया इसके विरोध में? In this story we see that God gets angry and he kills many of them and he burns down their city. और इस भाग में हम ऐसा पढ़ते हैं, यीशु मसीह उन्हें मार देते हैं और राजा उन्हें मार देता है और उनके नगर को या फिर देश को नाश कर कर फूंक दिया। Now how do I understand that this is talking about the Jews? ये मुझे कैसे समझ में आता है कि यह यहूदियों के बारे में बात किया गया है? Well, first of all, if you know anything about the history of Jerusalem, you will know that in 70 AD, that is 70 after the death of Christ, the city of Jerusalem was completely burnt down. 70 AD, और यदि आप मुझे पूछो तो ये मुझे कैसे पता चलता है, तो 70 AD के बाद में यहूदियों के देश को या फिर उनके निवास स्थान को नाश कर दिया गया आग लगाकर। So this was done by the king in this parable, and 70 years after Christ, the city of Jerusalem, where the Jews were who killed Jesus, was burned down. यीशु के मृत्यु के बाद यरूशलेम में उनके मृत्यु के बाद सालों बाद उस नगर को जला दिया गया और उसके वहां के लोगों को मृत्यु में डाल दिया गया। And over again we have seen in the history of the Jews how they have been
through genocide and countries taking over them and destroying them over and over again, and how they have been dispersed around the whole world. यदि हम इतिहास को देखे जाए तो कैसे यहूदियों को पीड़ित किया गया है, कई लोगों के द्वारा उनकी मृत्यु होती रहती है और कैसे वो तीतर बीतर होकर पूरे राज्य में फैले गए हैं। So this is a direct result of them denying the invitation of God. सीधा जवाब है कैसे उन्होंने यीशु मसीह के निमंत्रण को तिरस्कार किया और उसका फल क्या अंत में हुआ उसके बारे में बताया गया है। Jesus himself said that you, the Jews, you have killed the prophets that came before me, talking about the Messiah. यीशु ने खुद से कहा कि तुमों मेरे पहले आने वाले जो भी वाहक थे या फिर भविष्यवक्ता थे उनको मृत्यु में डाल दिया और उन्हें मार दिया, मेरे संदेश वाहक को। So when someone is inviting you to a church service, they are inviting you to the wedding feast sample. यदि आपको कोई कलीसिया में आमंत्रण करता है तो वो आपको एक विवाह के भोज के एक तौर पर, एक छोटे से दृष्टांत के तौर पर आपको उस कलीसिया में बुला रहा है। Now some of you say no because you are busy with your business or you're busy with some other work in the house. कईयों में से आप नहीं कहते हो क्योंकि आप अपने कारोबार में व्यस्त हो, व्यापार में व्यस्त हो या आपके अपने काम काज में व्यस्त हो। आप Here God is calling you because he wants you to enjoy the wedding. यहाँ यीशु मसीह आपको बुला रहा है ताकि वो चाहता है इस विवाह के बोझ को, इस विवाह को आप आनंद करें। Because the wedding feast is the feast where you are in God's presence. विवाह का उस बोझ, उस आयोजन ऐसा एक स्थान है जहाँ परमेश्वर यीशु मसीह की उपस्थिति, उनके आशीष, उसकी संगति का आनंद लेते हो आप। Now some others of you not only go say no and go back to your business, but you actually kill the messenger in the sense that you insult them and you abuse them. कुछ ऐसे ही नहीं जो अपने कामकाज में व्यस्त है या फिर अपने खेतों में जाते हैं, लेकिन ऐसा भी है कि लोग जो आपको निमंत्रण दे रहे हैं, बुला रहे हैं, उनको मार कर, उनकी निंदा कर कर, उनका दट्टा उड़ाकर उन्हें बेइज्जत करते हैं। This happens to every single one of us who invites people to know about Jesus Christ. ये हर एक चीज जो भी बताया गया पहले हम में से घटती है या फिर हमारे साथ घटती है, जो जिन्हें हम यीशु मसीह की ओर बुलाते हैं, उनकी संगति में, उपस्थिति में बुलाते हैं। We go to the streets, we talk to people about Jesus. What are we doing? We are inviting them to enjoy this wedding feast. हम रास्ते पर जाते हैं, चौराहे पे जाते हैं, कई स्थानों पर जाकर परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में कहते हैं, तो हम उन्हें निमंत्रण या फिर आमंत्रण दे रहे हैं यीशु मसीह की संगति में आने के लिए। When we are posting these things on social media, why are we doing this? Because we are calling people to come and enjoy what we are already enjoying. आमीन। जब हम इस पोस्ट को या फिर एक मीटिंग के बारे में या फिर आने वाले संदेश के बारे में हम पोस्ट करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम सीधी तौर से या फिर कई माध्यमों के द्वारा परमेश्वर के लोगों को या फिर दुनिया के लोगों को हम निमंत्रण दे रहे हैं कि आकर सहभागी हो जाइए यीशु मसीह में। So every single one of you is being called right now if you're hearing my voice. हर एक व्यक्ति जो मेरा इस आवाज सुन रहा है, मुझे देख रहा है, आप बुलाए गए हो। It is your choice if you want to come and enjoy the wedding feast or you want to suffer what will happen because you're rejecting the invitation from God. चुनाव आपके पास है कि आपको इस निमंत्रण को स्वीकारना है या फिर तिरस्कार करना है या फिर उनके संगति का आनंद लेना है और उसकी आशीषों को प्राप्त करना है। I lose nothing by doing this. मेरा कुछ खोना नहीं है मुझे ऐसे करने से। But you will lose everything if you deny the invitation for the amazing wedding feast that is happening right now. लेकिन आपको सब कुछ खोना है यदि आप इसका तिरस्कार करो, जो इस आशीषकारी विवाह का भोग है और भोज है, उसमें यदि आप नहीं सहभागी होते हो और उसे तिरस्कार करते हो। We saw in this parable now that we will continue with this as well, but we saw that God is not happy with those that not only reject the invitation but also the ones that attack the messengers. आमीन। इस भाग में हम देखते हैं, हम इसका आगे बढ़ेंगे, लेकिन जितना भी हमने पढ़ा उसमें हमने देखा ना कि जिसको निमंत्रण किया है उनके तिरस्कार किया और ना कि जिन्होंने तिरस्कार किया उनके साथ का क्या हाल हुआ हमने देखा।
So, are you called or are you chosen? तो क्या आप बुलाए गए हो या फिर क्या आप चुने गए हो? Every single one of you is called, हम में से हर एक व्यक्ति बुलाए गए हैं, but some of you will be chosen. लेकिन आप में से कुछ चुने गए हैं। And if you have been chosen, then God is telling you that right now. यदि आप चुने गए हैं तो यीशु मसीह आपसे कर रहे हैं अभी इसी वक्त। If you're struggling in life while you are in Jesus Christ, I guarantee you, you have been chosen. यदि आप जीवन में समस्याओं से गुजर रहे हो और आप जानते हो कि आप परमेश्वर यीशु मसीह में हो, तो मैं आपको वायदे के साथ कह सकता हूँ कि आप बुलाए गए हैं। And the sooner you accept that, the more you will enjoy your life. आप उसका आनंद ज्यादा लोगे और उसे आप स्वीकार लोगे, तो उस चुनावट में आप उसका आनंद और संगति आनंद ले पाओगे। I pray that every single one of you that has received this calling, that you will accept it, because there is nothing better in life than to be in the presence of God. इस बुलावट को आप में से हर एक व्यक्ति जिसने इसे स्वीकारा है, इसकी गहराई समझकर, उसकी आत्मिकता समझकर आप आगे बढ़िए और परमेश्वर के लिए और उपयोगी में आए, कि यह प्रार्थना करता हूं मैं। God bless you. परमेश्वर आप सभी को आशीष करे।